बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विधान उपाध्याय के कार्यालय पर मंगलवार को प्रशासन की ओर से ताला लगा दिया गया। ये कार्यालय बाराबनी के 5 गच्छा स्थित राजीव चक इलाके में है और लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जानकारी के अनुसार बाराबनी के BDO शीलादत्य भट्टाचार्य की मौजूदगी में प्रशासनिक कार्रवाई की गई। इस दौरान क्षेत्र में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। हालांकि कार्यालय को सील किए जाने के कारणों को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। बाराबनी के BDO शीलादत्य भट्टाचार्य ने भी इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सूत्रों का दावा है कि जिस जमीन पर कार्यालय बना है वो सरकारी जमीन है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा। मेयर विधान उपाध्याय और बाराबनी विधायक अरिजीत रॉय ने इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। সেটা তো আমি যেদিন আমাদের 4 তারিখে সরকার গঠন হয়, মানুষের রায়ে ভারতীয় জনতা পার্টি আশীর্বাদ পায়, তো সেই দিনে আমি বলেছিলাম যে আপনারা দেখেছেন রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে দখলদারি ছিল তৃণমূলের, তার থেকে বারাবণীও বিরত ছিল না। এবং বারাবণীর বিধায়ক, তৎকালীন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় জোর করে ওই যে বিল্ডিংটা ছিল সেটা সরকারি টাকায় ব্যবহৃত বিল্ডিং, পঞ্চায়েত সমিতির ফান্ডে এখানে বিল্ডিং বানানো হয়েছে। এমনকি BUP ফান্ডে, বিধায়ক উন্নয়ন ফান্ডেও সেই টাকা ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু ওটা যেভাবে হয়, তৃণমূল তো যখন রাজত্ব করেছে তারা তো আইনের শাসনের কোনো পরোয়া করেনি। সেখানে বারাবণী বিধানসভার মূল তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় বলে সেটা চালানো হয়েছে। সেখানে বিধায়কের রীতিমতো প্রতিদিন ওঠা বসা, পার্টি পরিচালনা করা, সমস্ত কাজ তারা করেছে। কিন্তু আমরা যেদিন সরকার হয়েছিল আমি সেদিন আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ওই বিল্ডিং সরকারের তৈরি এবং সরকারিভাবেই ওই বিল্ডিংয়ের পজিশন নেওয়া হবে। তো সেই একইভাবে আজকে আমার মনে হয় পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় BDO সাহেব গিয়ে সেটার অফিসিয়ালি পজিশন নিল এবং আগামী দিনে ওইখানে ওই বিল্ডিংকে কমিউনিটির কাজে আমরা লাগাবো এবং আরও প্রয়োজন হলে সরকারি ফান্ড অ্যালট করে ওইটাকে রিনোভেশন করব এবং সমস্ত ওই এলাকার মানুষকে একটা ন্যূনতম মূল্যে, তাতে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহ কার্য হোক বা আরও কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান হোক, এমনকি সরকারি কার্যক্রমও এবার আমরা ওইখান থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমরা করব। এবং এটা যা স্বাভাবিক হলো, পতন হওয়ারই ছিল। অধ্যত্ত এবং যে মানুষ জ্ঞান না করা, নিজেদেরকে পাওয়ারে থেকে রাজা ভেবে নেওয়া, তো তার ফল আজকে তাদেরকে ভুগতে হচ্ছে। আমি এক্ষুনি শুনলাম, তো ওটাকে কমিউনিটি হল হিসাবে ওখানকার মানুষ করতে, কমিউনিটি হল হিসাবে থাকতো, আমরা ওখানে থাকতাম, বসতাম। বলবো আর কি, মানে যা চলছে বলে আর কি পাবো।
आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। कांगसा के शोकना गांव में कथित अवैध बालू तस्करी को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि लंबे समय से रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों के जरिए बालू की अवैध ढुलाई की जा रही थी। विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने पहले करीब 40 बालू लदे ट्रैक्टरों को रोक लिया और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के बाद प्रशासन ने 30 बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सिलामपुर क्षेत्र से बालू लाकर गांव की सड़कों के माध्यम से अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जिससे सड़कों और आसपास के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कई ट्रैक्टर चालक वैध चालान नहीं दिखा सके। इस घटना को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। আমাদের আমরা শোকনা গ্রামের বাসিন্দা। আমাদের এখানে অবৈধভাবে প্রচন্ড বালি বালি নিয়ে যাতায়াত করে, তাতে আমাদের ওখানে রাস্তায় প্রচুর মানুষের অসুবিধা হয়। আর বালি বালি পার করার সময় বাড়ি ভেঙে দেয় এবং অনেক মানুষের ক্ষতি হয়। তাই আমরা বলছি যে শুভেন্দুবাবু মহাশয় আমাদের এই বিচারটা ঠিকভাবে। যত ট্রাক্টর গুলো আপনারা ধরেছেন সবারই চালান আছে? না, চালান ওরা দেখাচ্ছে, যেটা দেখা যাচ্ছে যেটা ওই জেরক্স চালান, অরিজিনাল চালান তারা দিচ্ছে না। হ্যাঁ, কোথা থেকে লোড হয়েছে, কোথা যাচ্ছে? এটা ওই শিলামপুরের ডাবলুদার কাছ থেকে, আর ওই গৌতম বলে একজন আছে অধিকারী থেকে একটা লোড হয়েছে কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ।
কত গাড়ি অ্যাটাক করেছেন আপনারা? আমরা 35 থেকে 40-এর মধ্যে আমরা অ্যাটাক করেছি, বা গ্রামের সমস্ত মানুষ আমরা এটা ইয়ে করেছি। হ্যাঁ, এই কবে ধরলেন ট্রাক্টরগুলো? কালকে রাতে 15 তারিখে, 15/6/2026। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে এইভাবে যেন বরাবর বালিটা যেন না আমাদের এদিকে পারাপার হয়, তাতে আমাদের মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ, অসুবিধা হচ্ছে। আর এই গাড়ির মালিকদের আমরা জিজ্ঞাসা করছি যে ঘাটে কত করে বালি নেওয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ওরা 2500 টাকা করে বালি ওখানে লোডিং দিচ্ছে, আর সাধারণ মানুষকে 4000 টাকা করে বালি দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, তাই শুভেন্দুবাবু মহাশয়ের কথা এরা অমান্য করে চলছে। তাই আমরা সমস্ত গ্রামবাসী মিলে আমরা চাইছি যে গরিব মানুষ আমরা বালি নিতে চাই, বা আমরা নিতে পারছি না, কেননা এরা অবৈধভাবে বালি প্রচার করে প্রচুর পরিমাণে আমাদের দাম নেওয়া হচ্ছে। তাই আমরা শুভেন্দুবাবু মহাশয়কে আমরা বলতে চাই যে এর একটা ফাসলা করে দেখ, বা একটা একটা হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী তপন বাউরি। আপনি হ্যাঁ, কোন পদে আছেন? আমি বিজেপি, হ্যাঁ গ্রামে হিসাবে আছি। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी प्रेक्षागृह में मंगलवार को 5 जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने की। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बरसात के मौसम में जल जमाव, डेंगू, बिजली के करंट से होने वाली मौतों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने, डेंगू रोकथाम के लिए विशेष निगरानी रखने तथा बिजली संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अग्निमित्रा पॉल ने सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। साथ ही दामोदर नदी से अवैध जल निकासी पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया, ताकि आम लोगों को जल आपूर्ति में कोई समस्या न हो। बैठक में पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया और बीरभूम के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, नगर निकायों के अधिकारी तथा कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मंत्री ने मानसून से पहले प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश दिया। বর্ষাকালটা যাতে ঠিক মতো যেতে পারে তার জন্য আমরা প্রত্যেক ইউএলবিকে এবং বিধায়ক 5টা বড়তে টেন্ডার হয়ে গেছে, এবং নালীগুলো পরিষ্কার করার কাজ অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেন্ডার হয়ে গেছে, কাজ 1-2 দিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকটা ছোট নালী, মাঝারি নালী, বড় নালী পরিষ্কার করা, এটা আমি কমিশনার স্যারকে বলে দিয়েছি। এবং তার সাথে সাথে আমাদের হ্যাঁ সমস্ত ডেঙ্গির জন্য আজকে যে স্বচ্ছ অ্যাপ যেটা আমরা লঞ্চ করেছি, ময়লা দেখলে যেরকম আপনি ছবি তুলে পাঠাবেন, জমা জল দেখলেও আপনারা কিন্তু ছবি তুলে পাঠাবেন। কোথায় জমা জল রয়েছে, কালকে টিএমসিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেছে। কলকাতায় যদি কোথাও জমা জল রয়েছে সেটাকেও ছবি তুলে পাঠাবেন, সঙ্গে সঙ্গে টিএমসি থেকে আমরা লোক পাঠাবো সেটাকে দেখার জন্য। সুতরাং আমাদের একার পক্ষে এই কাজটা করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সাধারণ মানুষ আপনাদের মাধ্যমে এই মেসেজটা পৌঁছয়। আমাদের হ্যান্ড হোল্ডিং করে এই কাজটা করতে হবে। কারোর ইচ্ছে করে না ময়লা পরিষ্কার করতে, আমাদের নির্মল বন্ধু, নির্মল সাথীরা ম্যান হলে নেমে বা রাস্তার ধারে এই গরমের মধ্যে পরিষ্কার করছে, কারোর ইচ্ছে করে না সামান্য কাছে টাকার জন্য পেটের দায় করতে হচ্ছে। তাই আমরা একটু সজাগ হই না, আমরা ময়লা করবো না রাস্তা। এবং কেউ যদি তারপরেও যদি ময়লা করে তাহলে 1 সেপ্টেম্বর থেকে ময়লা মানে থুতু ফেলবেন, পানির টিপ ফেলবেন, চিপসের প্যাকেট ফেলবেন, ডাব ফেলে দেবেন, বা রাস্তায় পেচ্ছাপ করবেন, মানে ইউরিনেট করবেন, সেখানেও কিন্তু ফাইন হবে। এবং প্লাস্টিক ব্যাগ যদি ইউজ করেন সেটাও কিন্তু আমরা ফাইন শুরু করবো 1 সেপ্টেম্বর থেকে। আমরা জায়গায় জায়গায় ভেন্ডিং মেশিন বসাবো, যেখানে আপনি কম দামে আপনাকে অল্টারনেটিভ ব্যাগ আপনি নিয়ে নেবেন। বাজারে গেছেন, ভুলে গেছেন আনতে, আপনি ওই ভেন্ডিং মেশিন থেকে ব্যাগ নিয়ে নেবেন। কিন্তু প্লাস্টিক ব্যাগ যেটা ব্যান আছে, সেই প্লাস্টিক ব্যাগ কিন্তু ইউজ করা যাবে না। এবং যারা ফ্যাক্টরি
आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कुल्टी थाना के नेमतपुर फाड़ी में कार्यरत होम गार्ड रवि कुमार साव वर्ष 30 की सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया गया कि वो बाइक से दुर्गापुर जा रहे थे, तभी दुर्घटना का शिकार हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर आसनसोल पुलिस लाइन लाया गया, जहां पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शव को नेमतपुर फाड़ी लाया गया, जहां कुल्टी थाना के आईसी अशोक सिंह महापात्र, फाड़ी प्रभारी मीर कुमार देव, साकतोड़िया फाड़ी प्रभारी विनय दास सहित पुलिसकर्मियों और सिविक वॉलंटियर्स ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। बाद में पार्थिव शरीर को बराकर स्टेशन रोड स्थित उनके आवास ले जाया गया, जहां परिवार, स्थानीय लोगों और पुलिस जवानों ने अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। रवि कुमार साव अपने पीछे पत्नी और एक छोटी बेटी को छोड़ गए हैं। उनकी असामाजिक मृत्यु से बराकर क्षेत्र और पुलिस महकमे में शोक की लहर है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माइथन जलाशय में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बच्चों और महिलाओं सहित 14 पर्यटकों से भरी एक नाव सबूज द्वीप की ओर जा रही थी। तभी जलस्तर कम होने के कारण पानी के भीतर छिपी एक चट्टान से टकरा गई। टक्कर लगते ही नाव के निचले हिस्से में दरार आ गई और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। बीच जलाशय में नाव को डूबता देख पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई और वे मदद के लिए चिल्लाने लगे। पर्यटकों की आवाज सुनकर झारखंड के बाबूघाट क्षेत्र के स्थानीय नाव चालक तुरंत अपनी नाव लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए घबराए हुए पर्यटकों को शांत कराया और सभी 14 लोगों को सुरक्षित दूसरी नाव में स्थानांतरित कर किनारे पहुंचाया। इस घटना के बाद माइथन में पर्यटन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के नाव यात्रा करते हैं और वहां अस्थायी लाइफ गार्ड या बचाव दल की भी व्यवस्था नहीं है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जलाशय में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, लाइफ गार्ड तैनात करने तथा खतरनाक नौका मार्गों को चिन्हित करने की मांग की है। घटना यही है कि बोट उधर से आ रही थी और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा। भरने के बाद में जो आदमी सब उसमें सवार थे, 12-13 आदमी था, वो डूबने लगा। वो जो कि हम सामने में थे, नाव लेके खड़े थे, तो देखने लगे डूब रहा है। उसके बाद में हम गए जाके उसमें बचाने की कोशिश की और बचाते हुए सबको सुरक्षित बचा लिए। 12-13 आदमी था उसमें सवार थे। वो बोट कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये बोट हम लेके आए थे, आपको झारखंड से लेके गए थे बंगाल। नहीं, जो बोट डूबा है पानी में वो ये डूबा आपको बंगाल मजूमदार निवास गेस्ट हाउस है, उसी के सामने से बोट चलती है वहाँ से। तो और कितना मुश्किल रहा बचाना उन लोगों के को? लिए बहुत मुश्किल रहा और धीरे धीरे बहुत प्रयास किए। उसके बाद में धीरे धीरे बोट सब नीचे एकदम चला गया, आदमी सब ऊपर सब चला आया। जो कि छोटा छोटा बच्चा उसमें था, 2-3 ठो बच्चा को भी निकाल लिए बाहर और बड़ा आदमी को भी निकाल लिए। डूबने का क्या कारण रहा, क्या लगता है? सुरक्षा में कहाँ चूक हुआ? सुरक्षित में तो कहीं चूक नहीं है, लेकिन वही डूबने का कारण यही कि बोट में टकरा गया पत्थर में और टकराने के बाद में उसमें धीरे धीरे पानी लेने लगा। और यहाँ से हम गए थे, मंटू महतो का घाट है हम लोग का, बाबू बोटिंग घाट, यहीं से बोट चलाते हैं। अभी बहुत लोग आपका नाम ले रहा है, प्रशंसा हो रहा है कि आपने इतने लोगों को बचाया। इसको लेकर के आपको क्या कहना है? आपका प्रशंसा भी हो रहा है। प्रशंसा यही है कि हम लोग यही सब करते हैं, बचाने उचाने का काम, बोटिंग करवाते हैं। क्या कहेंगे कि इस माइथन डैम में सुरक्षा को लेकर के और क्या क्या करना चाहिए? सुरक्षित के लेकर सुरक्षित बढ़ाना चाहिए और भी आदमी को थोड़ा सा एक्टिवेट करना चाहिए, उसमें सुरक्षित करे। बचाने के लिए बचाव दल होना चाहिए जो कि अच्छा रहे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन। दुर्गापुर में शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह सिटी सेंटर बस स्टैंड क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता अभियान में राज्य के नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने स्वयं झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया।
निर्मल बंधु और निर्मल साथी कार्यक्रम के तहत आयोजित इस अभियान में जिलाधिकारी एस पुन्नाबलम, नगर निगम आयुक्त अबुल कलाम आजाद इस्लाम सहित कई अधिकारी और सफाई कर्मी मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि सड़क, बस स्टैंड या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने और पान की पीक थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्दी एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और उनका त्वरित समाधान किया जाएगा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत रानीगंज थाना पुलिस ने सोमवार रात तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता सौमित्र बनर्जी को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई भाजपा नेता रवि केसरी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है। भाजपा नेता रवि केसरी का आरोप है कि वर्ष 2024 में आरजीकर यानी कि अभया कांड के विरोध में आयोजित भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान तृणमूल समर्थित नेताओं ने हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि इस हमले में उन्हें और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल किया गया था। शिकायत के साथ एक वीडियो फुटेज भी पुलिस को सौंपा गया है जिसमें कथित तौर पर मारपीट की घटना दिखाई गई है और सौमित्र बनर्जी को मुख्य आरोपी बताया गया है। भाजपा का आरोप है कि संबंधित नेता और उनके सहयोगी पहले भी कई बार पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले कर चुके हैं। पार्टी नेताओं ने यह भी दावा किया कि कुछ आरोपी बालू और कोयला तस्करी जैसे अवैध कार्यों से जुड़े रहे हैं। भाजपा ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग की है। वहीं गिरफ्तार सौमित्र बनर्जी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्होंने कभी किसी भाजपा कार्यकर्ता पर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। এখনো তো জানি না কি বিষয় আমাকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের সংবিধানের প্রতি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ প্রশাসনের প্রতি ফুল আস্থা আছে, আইন শৃঙ্খলার প্রতি ভরসা আছে। আমি জানি যে আমাদের রানীগঞ্জ থানার যিনি বড়বাবু আছেন খুব ভালো, ঠিক আছে, আইন শৃঙ্খলা মেনে চলেন এবং পুলিশ প্রশাসনও ভালো এবং আমাদের যিনি নতুন মুখ্যমন্ত্রী মানে হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, ওনার প্রতিও আস্থা আছে যে উনি খুব লড়াই করে এগিয়ে এসছেন এবং উনি কখনো অন্যায় আশা করি করবেন না। বিজেপির পক্ষ থেকে বিজেপি কর্মীরাই আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। চারিদিকে হচ্ছে সেরকম, রানীগঞ্জ হচ্ছে, এটা পার্টি যখন পাল্টে এরকম হয়, এরকম ঘটনা ঘটে, তো হচ্ছে চারিদিকে, এখানেও হচ্ছে। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেটা কি তাহলে সত্যি? হুমকি দেওয়া, ইয়ে করা বিজেপি কর্মীদের? এবারে কিছু তো বলতে হবে, এমনি তো করতে পারে না, তো যা যা বলা তাই বলবে। কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে আমি ছাত্র রাজনীতি করে এসেছি এবং কখনোই আমি ঝুট ঝামেলা থেকে করিনি। যা হয়েছিল ওই ছাত্র রাজনীতির সময় একটু আধটু যেমন কলেজে হয়, তো আপনারাই দেখেছেন সেই সময়। তারপরে কোনো দিন কেউ দেখাতে পারবে না, কেউ বলতে পারবে না যে বিজেপির সঙ্গে কোনো ঝামেলা ঝুট কখনো কিছু না। যা ছিল নীতিগত লড়াই। আর আমি বিশাল বড় কোনো নেতা ছিলাম না, এখনও নেই, ঠিক আছে। আমি এমনিতেই আমাকে পার্টি কোনো অ্যাক্টিভলি কোনো কাজ করতেও দিত না। যতটুকু ভোটের সময় একটু ওই ব্যানার লাগানো, ঝান্ডা লাগানো এসবই করেছি, তার বেশি কখনোই কিছু করিনি। অভিযোগ করা হয়ে গেছে 28/8/2024-এ আমাদের তৃণমূলের যে সন্ত্রাসবাদী জিহাদিবাদী মানুষরা, ওরা আমাদের বিজেপি কর্মীদের উপরে অনেক হামলা করেছে, অনেক রকম সন্ত্রাস হয়েছে, ধমকি চমকি, বম, পিস্তল, গুলি, বালি অনেক করেছে। তো ওই টাইমে আমাদের 28/8/2024-এ আমার উপরে, আমরা এখানে একটু আন্দোলন করছিলাম, ও টিএমসি লোক কি করেছে আমাদের উপরে হামলা করেছে। কি বিষয় নিয়ে আন্দোলন ছিল আপনাদের? আমরা অভয়াকাণ্ডে যে হয়েছিল, আমরা ওকে বিচার যেরকম পাই ওর জন্য আন্দোলন করছিলাম, তো ওই জন্য আমাদের উপরে হামলা করা হয়েছিল টিএমসি সন্ত্রাসবাদী যে মানুষরা ওরা। তো ওই কারণে ওই টাইমে আমরা কি করেছিলাম, এফআইআর করতে গিয়েছিলাম। এফআইআর আমাদের নেই আমাদের সরকার এসেছে যে আমরা এফআইআর দেখি থানাতে, এফআইআর হয়েছে। তো আমার উপরে যে হামলা হয়েছিল, আমার মাথা ফেটেছিল, আমাদের অনেক যে কার্যকর্তারা ছিল ওদের শরীরে লেগেছিল ডাঁটা, রড,
অনেক দিয়ে মারা গিয়েছিল। তো তো এই ঘটনায় কি ওই সৌমিত্র যুক্ত ছিল? হ্যাঁ, সবাই ছিল, এরা কেউ এরকম অনেক ছিল, জিয়াদি মানে 40-50 জন ছিল, একজন জন ছিল না, 40-50। আপনারা কি আরো অন্য নামে অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ, অনেকজনের নামে আমরা অভিযোগ করেছি। এবার দেখো সরকার দিকে আমরা চাইছি কি ওরা ভালো করে শাসনে যে অনেক শুনেছি এরা তো বোম বালি কয়লা কি কাজ করে না, সব যত বেআইনি কাজ, সব বেআইনি কাজ থেকে এরা জড়িত ছিল। আর দেখেছি কি অনেক এরা সমস্ত শুনেছিলাম কি বোম থেকে উড়িয়ে দিব, থানাতেও বলেছিল কি বোম থেকে উড়িয়ে দিব, এইসব তো আমরা শুনেছি দেখেছি। কথা হতেও পারে, দেখুন আমরা এটা তো আগ্নেয়াস্ত্র দেখি নাই, কিন্তু বোম গালু যেরকম বলেছে তো থাকবে তো নিশ্চয়ই, তবে তো এরা এরকম ধমকি দিবে, না থাকলে কি করে ধমকি দিবে। বলছি এদেরকে অ্যারেস্ট করুন, উচিত যে সাজা মিলনা চাইয়ে, এদেরকে পাওয়া দরকার একদম। रवि केसरी, आसनसोल सांगठनिक जिला कोर कमेटी सदस्य। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पंच पांडव मंदिर में रविवार को एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों की घर वापसी कराए जाने का दावा किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू जागरण मंच की ओर से किया गया था। पंच के एक प्रतिनिधि ने बताया कि ये लोग पहले हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते थे, लेकिन समय के साथ अन्य धर्मों के प्रभाव में आकर अपनी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं से दूर हो गए थे। उनके अनुसार मंदिर परिसर में वैदिक रीति रिवाजों के तहत शुद्धिकरण प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसके बाद उन्हें पुण्य हिंदू धर्म में शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी किए गए। आयोजकों ने इसे सांस्कृतिक और धार्मिक जागरूकता से जुड़ा अभियान बताया। वहीं इस आयोजन को लेकर इलाके में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इस मामले पर दूसरे पक्ष या संबंधित समुदायों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पांडवेश्वर खान का तरफ से जो हिंदू लोग भूल भ्रांत हो के दूसरा धर्म का माने पूजा पाठ करता था, वो लोग हिंदू है, फिर उन लोग को फिर हम लोग का हिंदू देव देवी का पूजा फिर पाठ कराएंगे, फिर पूजा कराएंगे। इसी लोग का आग्रह किया, वो लोग को भी मैंने अपने मन से फिर अपना धर्म का जो पूजा पाठ है वही सब करेंगे। आज को उसका मैंने वो लोग का शुद्धिकरण करा के हम लोग फिर वो लोग को हिंदू में जो पूजा पाठ आगे करता था वैसे फिर हिंदू लोग थे जिन लोगों को धर्म परिवर्तन किया गया था, क्या धर्म परिवर्तन है, वो लोग बुला के फुसला के माने भ्रम दे के वो लोग को दूसरा धर्म का अपनाने का कोशिश कर रहा था। वो लोग जब अपना भ्रम देख लिया कि धर्म हम लोग का अपना धर्म में फिर हम लोग रहना चाहते हैं, फिर वो लोग बोला ना हम अपना पूजा पाठ फिर करेंगे। इसलिए वो लोग का शुद्धिकरण करके हम लोग हिंदू जागरण मध्य बंग प्रांत से पांडवेश्वर खान से आज वो लोग को पंचवर्ण मंदिर में फिर वो लोग को अपना हिंदू धर्म में प्रत्यावर्तन कराए। 100 जन आज फिर की ऊंचाई हर कदम पर। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक कार्यालय में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने पंचायत समिति अध्यक्ष कल्याण सौमंडल और जिला परिषद के कार्याध्यक्ष सुजीत मुखोपाध्याय के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद ये जनप्रतिनिधि जनता को कोई सेवा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि जिला परिषद के कार्याध्यक्ष सुजीत मुखोपाध्याय ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे जनता के वोट से चुने गए हैं और लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। उन्होंने दावा किया कि वे नियमित रूप से जनता की सेवा और समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालय आते हैं। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।